माँ नर्मदे सिद्धिदात्री है, माँ गंगा मोक्षदायिनी है। वैसे ही माँ नर्मदे सिद्धिदात्री यहाँ पे जो भी बैठ के जब तक अनुष्ठान करता है वो व्यक्ति सिद्ध होता है। और जितने भी साधु संत हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी ही पड़ती है। অচানকই অনুভব হয়েছিল যে এখানে আসার পরে আমি দেখছি যে প্রথমবার আসার পরে নর্মদা কিনারে বেডকে স্নান জপ তপ করার পরে আমাকে আবার দুবার আসতে হলো। আচ্ছা যখনই আসছি আমি 10-12 দিন এখানে থাকছি। আচ্ছা তো এক অদ্ভুত যে অনুভব সেটা মানে বোঝানো মুশকিল। इसको यदि हम ड्रोन से ऊपर से देखते हैं ओंकार पर्वत पे, तो ये श्री यंत्र पे ये मंदिर स्थापित है। ये ओम बिंदु पे स्थित है, जो ओम का बिंदु होता है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और ये आपके श्री यंत्र, यहाँ का जो अनुभव है बड़ा विचित्र है। जब आप यहाँ साधना में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो अपने आप को अलग ही पाएंगे। ये मेरा मैं पर्सनल आपसे আচ্ছা, পাথর কি কথা বলতে পারে? কখনো কি কোনো ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার মনে হয়েছে এই নিস্তব্ধতার আড়ালে লুকিয়ে আছে হাজার বছরের কোনো আর্তনাদ বা কোনো গভীর আধ্যাত্মিক রহস্য? আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব মধ্যপ্রদেশের নর্মদা তীরের এমন এক পবিত্র দ্বীপে, যার মানচিত্র স্বয়ং বিধাতা তৈরি করেছেন ওঙ্কারের আকৃতিতে। কিন্তু আজ আমরা শুধু ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নয়, বরং পরিক্রমা পথের সেই রহস্যময় জায়গায় যাব, যেখানে মন্দির আজ ভগ্নপ্রায়, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক শক্তি আজও অমলিন। চলুন দেখি ওঙ্কারেশ্বরের সেই প্রাচীন সিদ্ধনাথ মন্দির। পরিক্রমা পথের চড়াই উতরাই পেরিয়ে যখন আপনি এই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাবেন, আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে এক বিশাল মন্দিরের কঙ্কাল। নাম তার সিদ্ধনাথ মন্দির। একাদশ শতাব্দীর সেই রাজকীয় স্থাপত্য আজ সময়ের আঘাতে খোখত বিক্ষত। কিন্তু জানেন কি, এই পাথরের হাতিগুলো যারা আজও মন্দিরের ভার বহন করে চলেছে, এদের প্রতিটি কারুকার্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানুষ ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু ভক্তিকে মুছে ফেলতে পারে না। এখানে দাঁড়িয়ে যখন নর্মদার শীতল হাওয়া আপনাকে ছুঁয়ে যাবে, তখন একবার চোখ বন্ধ করবেন। ভাবুন তো, ঠিক এই জায়গায় বসে হাজার বছর আগে কোনো এক সাধক হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। একে কেন সিদ্ধনাথ বলা হয়? কারণ এখানে পাথর নয়, এখানে সাধনা কথা বলে। এই ভাঙা দেয়ালগুলোর প্রতিটি কোণায় আজও যেন সেই প্রাচীন মন্ত্রচারণের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আমরা অনেকেই জীবন একটু ভেঙে পড়লে হাল ছেড়ে দিই, কিন্তু এই মন্দির আমাদের শেখায় ভগ্নস্তূপের মাঝেও মহিমা টিকে থাকে। মন্দিরটি আজ অসম্পূর্ণ, তার শিখর নেই, তার গর্ভগৃহ হয়তো আগের মতো নেই। তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন এখানে এসে মাথা নত করে? কারণ সত্য কখনো পুরনো হয় না, আর বিশ্বাস কখনো ভেঙে যায় না। ঈশ্বরের এই পরিক্রমা কেবল 7 কিলোমিটারের পথ চলা নয়, এটি নিজের ভেতরের ঈশ্বরকে খোঁজার এক যাত্রা। এই সিদ্ধনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের বলে দিয়ে যায়, অহংকার একদিন ধুলোয় মিশে যাবে, কিন্তু নর্মদার মতো পবিত্রতা আর মহাদেবকে পাওয়ার তৃষ্ণা চিরকাল অমর থাকবে। যদি কখনো সুযোগ পান, এই প্রাচীন মন্দিরের একটি স্তম্ভকে স্পর্শ করে দেখবেন। হয়তো আপনিও অনুভব করবেন সেই আদি ও অনন্ত স্পন্দন, যা আমাদের বলে শিব সত্য আর সত্যই সুন্দর। এই মন্দিরটি হয়তো আজ ভেঙে পড়েছে, কিন্তু এর প্রতিটি ইট আর পাথরের ভাঁজে লুকিয়ে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস। ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে আমাদের এই প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে না যায়। ये मंदिर आपके राजा मानधाता से अपूर्व है, यानी कि उनसे पूर्व का मंदिर है ये। अच्छा यहीं पे राजा मानधाता ने तपस्या की थी और तब किया था, तब बाबा ओंकारेश्वर जी का यहाँ पे स्वयंभू उपस्थिति यानी उत्पन्न हुआ। और राजा मानधाता ने भी यहाँ की जगह में दिव्य तपोस्थलीय, इसको यदि हम ड्रोन से ऊपर से देखते हैं ओंकार पर्वत पे, तो ये श्री यंत्र पे ये मंदिर स्थापित है। अच्छा पे श्री यंत्र। श्रीयंत्र तो सबसे आदि ओंकार जो है वो यही मंदिर है। अच्छा कौन सा? आदि ओंकार। ओंकारेश्वर आदि ओंकारेश्वर मंदिर यही है, जहाँ आप अभी खड़े हैं। ठीक है। और साधना तपो स्थल मतलब कुछ यहाँ का तो हम कुछ बखान कर ही नहीं सकते हैं।
यहाँ पे ये जो नाम है इनका जो सिद्धेश्वर है, हाँ। तो ये जगह तो अपने आप में सिद्ध है, बड़ी दुर्लभ है। अच्छा। ठीक है। और ये ओम बिंदु पर स्थित है, जो ओम का बिंदु होता है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और ये आपके श्री यंत्र उसी पर आधारित ये मंदिर बना। अच्छा। राजा मानदाता के बाद में अज्ञातवास पे पांडव भी रहे हैं। ठीक है। मगर इसका जो यहाँ मेन मुख्य जो आप माने तो राजा मानदाता राम के पूर्वज हैं, उनके द्वारा आदिकाल में यहाँ पूजा की गई है। रावण को 6 महीने बंदी बना के इसी जगह रखा गया है। अच्छा। ये भी मैं आपको एक अकल्पनीय घटना बता रहा हूँ। यहाँ का जो अनुभव है बड़ा विचित्र है। जब आप यहाँ साधना में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, अपने आप को अलग ही पाएंगे। ये मेरा मैं पर्सनल आपसे अनुभव आपको। और जी आपका नाम? मेरा नाम साहब छोटा सा नाम है ईश्वर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ? मैं प्रॉपर से राजस्थान से। राजस्थान से। ये मेरा 11 वर्ष का अनुभव है। अच्छा। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे हर महीने 2 महीने में ओंकार जी। अच्छा अच्छा। मुगल शासक औरंगजेब यहाँ तोड़फोड़ के लिए आया था, तब उसका पतन का कारण इसी मंदिर से हुआ था, सिद्धेश्वर मंदिर ओंकार पर्वत पर। और यहाँ से जब वो नासिक होता हुआ, त्र्यंबकेश्वर होता हुआ जब एलोरा की गुफाओं में पहुंचा था, तो उसको ऐसी दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई थी कि वहाँ पे जब उसकी मृत्यु हुई थी तो बड़े दर्दनाक मृत्यु उसकी हुई थी। और वो उसकी मृत्यु कीड़े पड़ के हुई है। उसके शरीर में ऐसा रोग लगा था कि उसका पूरा शरीर दीमक की तरह गल गया था। और आज भी आप जब एलोरा की गुफा औरंगाबाद के वहाँ जाएंगे, आप कृष्णेश्वर महादेव यानी अपने 12वें ज्योतिर्लिंग पे, तो आपको एलोरा की गुफाएं वहाँ आपको दिख जाएगी कैलाशपुरी में। आप वहाँ जाके आप वो स्थल दिख सकते हैं। और वहाँ पे भी उसने तोड़ फोड़ की हल्की कोशिश ही रखी थी, उसके बाद में उसका पतन हुआ निश्चित। हर नर्मदे हर। नर्मदे। हाँ। मां नर्मदा पुराण में कहा गया है कि मां नर्मदे की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो शिव के पसीने से, भगवान भोले शंकर यानी महादेव के पसीने से मां नर्मदा की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पे इनका उद्गम स्थल अमरकंटक है, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर से। और वहाँ पे मां नर्मदे की उत्पत्ति हुई थी। वहीं मां नर्मदे खेली कूदी थी, यानी कि उनका बचपन बीता था, वो यौवन अवस्था में हुई थी। वहीं पे जो राजकुमार सोनभद्र थे, उनके साथ में उनका विवाह फिक्स हुआ था, यानी कि विवाह की उनकी बातचीत हुई थी। तो ऐसा हुआ था कि जब देवी नर्मदे इनके विवाह का प्रस्ताव अपनी सखी यानी कि वो दासी के साथ जब सोनभद्र के पास पहुंचाया था, तब मां नर्मदे वो जब दासी वहाँ सोनभद्र के पास गई थी तो उसका मन ललचा गया था मां नर्मदे के लिए कि बोले कि मैं ही नर्मदे हूँ। ठीक है। तो सोनभद्र ने उसको नर्मदा जी का रूप समझ के यानी नर्मदा जी समझ के उन्होंने आगे उसके साथ में समायोजन हो गया था जो भी उनका। तो मां नर्मदे को ये बात पता पड़ी कि मेरी दासी नहीं आई। तो काफी समय बाद जब नर्मदा जी स्वयं वहाँ पहुंची तो बड़े रौद्र रूप में माता क्रोधित हुई, बोले मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मेरे को विवाह ही नहीं करना। तो मां नर्मदा रुष्ट हो गई। तो वो उल्टी दिशा में यानी कि उल्टी बही है वो अमरकंटक से उल्टी दिशा उनकी निकली। और सोनभद्र को एक श्राप दिया था, बोले कि तू जहाँ जहाँ बहेगा ना वहाँ वहाँ गरीबी, लाचारी और पाप बढ़ेगा। तो आज भी बिहार के अंदर सोनभद्र नदी बहती है। ये वही नदी है जो मां नर्मदे का श्राप है। तो आज भी बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि वही पाप, वही मतलब गरीबी, वही दरिद्रता, वो सब कुछ है। और मां नर्मदे जहाँ जहाँ से बह रही है यानी अमरकंटक से चली, आप भेड़ाघाट में इन्होंने विशाल रूप लिया अपना, वहाँ से विशाल रूप लेने के बाद में पुनः से यहाँ से ओंकारेश्वर से पास में वहाँ पे इन्होंने बड़ा डैम बना हुआ है इनका। उसके बाद में ये हृदय जो मां नर्मदे का है वो आपका ये ओंकार पर्वत के यहीं पे ही है। यहाँ से हृदय भाग है मां नर्मदे का, यहाँ और ज़्यादा विशाल हुई है। और यहाँ से फिर आगे की तरफ यह महेश्वर होती हुई आगे खम्पात की खाड़ी में जाके विलय होता है मां नर्मदे का। ठीक है। तो ये इनकी 3600 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। दिव्य साधु संत, ग्रस्त लोग भी,
जो परिक्रमा करते हैं। और ऐसा मानना है, कोई भी संकल्प लेके मां नर्मदे की परिक्रमा करते हैं तो एक तरह से देखें तो भगवान शिव का वरदान है, ये सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर ये मैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करनी है, तो मां नर्मदे पे आप बैठ के इनके किनारे जप तप अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो फलीभूत है। मेरा भी अनुभव है, जो 11 वर्षों का अनुभव मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, आपको व्यक्त कर रहा हूँ कि कुछ अद्भुत होता है शरीर में जो साधना से संबंधित है। मां नर्मदे सिद्धिदात्री है, मां गंगा मोक्षदायिनी है, वैसे ही मां नर्मदे सिद्धिदात्री। यहाँ पे जो भी बैठ के जब तक अनुष्ठान करता है वो व्यक्ति सिद्ध होता है। और जितने भी साधु संत हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी ही पड़ती है। नर्मदे। महाराज जी, मेरा और भी प्रश्न है कि आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करी है? जी मेरा अभी तक तो नहीं हुई है, माँ का आदेश नहीं आया, मगर मैं ओंकारेश्वर 11 वर्षों से आ रहा हूँ। हर 1.5-2 महीने में मैं यहाँ पे ओंकारेश्वर आता हूँ। अच्छा महाराज जी, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में थोड़ी सी बताएं। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों का जो वापस से पुनर्स्थापना करी है वो आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से ही हुआ है। उन्होंने जगह जगह जाके वापस से अपने सनातन धर्म की वापस अलौकिक अलग जगह उन्होंने, तो वो यहाँ पे भी पधारे हैं इसी ओंकार पर्वत पे। हाँ महाराज जी, अभी भी सुनने में आते हैं कि जो आदिगुरु शंकर जी ने जो वो ज्योति देखा था अभी भी वर्तमान वहाँ है, मतलब अपना जो सूक्ष्म चक्षु दिख तो है उसमें नहीं देख पा रहे हैं, बाकी जो सिद्ध शांत त्यागी तपस्वी वो दिख जाते हैं, वो दृश्य यहाँ इस पर्वत में भी है। हाँ। ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं सिद्धेश्वर, हाँ। रात्रि कालीन आज भी बड़े बड़े संत जो लाखों वर्षों से या हजारों वर्षों से हम वो समाधि में समाधिस्थ हैं, हाँ। वो रात्रि आते हैं। लोगों का अनुभव है, यहाँ के रहने वाले लोगों का अनुभव है कि हमने यहाँ पे किनारे पे किसी साधु को देखा है, हाँ। हमने यहाँ संत को अंदर पूजा करते हुए देखा है, जो आज भी दिव्य आत्माएं यहाँ पूजा करने आती है। और 33 कोटि देवी देवता इस पर्वत पे विराजमान हैं। और इसके अलावा 120 रुद्रलिंग, 36 शिवलिंग इस पर्वत पे स्थापित हैं। 33 कोटि देवी देवता वो इस पर्वत पे विराजमान हैं, इस ओंकार पर्वत पे। ये हमारा पर्सनल 11 वर्ष का अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। नर्मदे हर। नर्मदे। ম্যাডাম আপনি বাংলায় কিছু বলুন না, যাতে বাংলা এবং বাঙালি জাতির জন্য কিছু আমাদের হার। আমার তো এরকম আচানকই অনুভব হয়েছিল যে এখানে আসার পরে আমি দেখছি যে প্রথমবার আসার পরে নর্মদা কিনারে বেডকে স্নান জপ তপ করার পরে আমাকে আবার দুবার আসতে হলো। আচ্ছা যখনই আসছি আমি 10-12 দিন এখানে থাকছি। আচ্ছা, তো এক অদ্ভুত যে অনুভব সেটা মানে বোঝানো মুশকিল। আচ্ছা, মাত্র যারা সাধু সন্ত হয় তারাই বুঝতে পারে, অন্য কেউ বোঝানো মুশকিল হয়। মানে নিজেকে জানার জন্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের জানার জন্য এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে। আর এখানে আসলে অবশ্যই জানতে পারবে নিজে আমি কোন ছিলাম, আগে কি ছিল আর এখন কি জন্য এসেছি, আচ্ছা সবই জানতে পারবে। আমার নাম শ্যামলী দাস, হ্যাঁ। পিতা কার্তিক চন্দ্র দাস, পূর্ব মেদিনীপুর বাড়ি। নর্মদে হর। जय हो माँ नर्मदा, जय हो माँ भगवती माँ रेवा की जय।